Good morning, all of you. This lecture is for class 12th, and today we discuss chemical reactions of alcohol and phenols. Chemical reactions of alcohols and phenols. Chemical reactions of alcohols and phenols. हमें ये पहले से पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन उसकी केमिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। और केमिकल एक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो हमारा गिवन रिएक्टेंट है उसके पास रिएक्शन टेंडेंसी कितनी ज़्यादा है। केमिकल रिएक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी एंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन the reaction tendency of the given reactant. Like in case of alcohols, these are of two type. In case of alcohols, these are of two type. What is? First is electrophile and second one is nucleophile. ठीक है। पहला क्या कि अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और दूसरा क्या कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज विच इज एक्चुअली नेगेटिव साइट लविंग एंड न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव चार्ज स्पीसीज विच इज एक्चुअली पॉजिटिव साइट लविंग. This all depends on the breaking of bond within alcohol like ROH. If the bond breaks up between O and H, this is the first possibility. So it will form RO negative plus H positive. And the second possibility is the bond break between R and O. So this is R positive plus OH negative. In case of R positive, it behaves like an electrophile. In case of R positive, alcohol behaves like electrophile. And in case of OR negative, alcohol behaves as nucleophile. Because OR negative always attacks on the positive charge center and this R positive will always attack on the negative charge center. So alcohol can behave both as electrophile as well as nucleophile. Let's discuss a reaction. Take an example in which R bond O bond H like CH3OH breaks up and form CH3 positive plus OH negative. If there is an attacking reagent Br negative, then it will always attack to the group which is responsible for electron donation. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर ये Br नेगेटिव जो है वो जाकर क्या करेगा, अटैक कर देगा. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, CH3 है. इसने अपना इलेक्ट्रॉन OH नेगेटिव को सप्लाई कर दिया और क्या बन गया, CH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव और इस Br नेगेटिव का एक अट्रैक्शन डेवलप हो गया CH3 पॉजिटिव के साथ. एंड दिस इंटरमीडिएट विल चेंज इनटू CH3Br. Then alcohol converted to alkyl halide. क्या बोला गया, when alcohol react with any other nucleophile, when alcohol react with nucleophile, it shows nucleophilic substitution reaction SN1. ये क्या है, SN1 रिएक्शन दिखा रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है.
nucleophilic substitution reaction of two steps, that is unimolecular nucleophilic substitution reaction, and the rate of reaction always depends on the amount of or on the activity of, on the reaction tendency of the given alcohol, and given alcohol is what? CH3OH. तो CH3OH की रिएक्शन टेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि ये जो कंपाउंड है ये कब बनेगा, कितनी देर से बनेगा, कितनी जल्दी बनेगा और कितना स्टेबल होगा। ठीक है, सपोज दैट हमने अगर 3 अल्कोहल ले लिए, जैसे कि C बॉन्ड OH दैट इज CH2 CH3 CH2OH, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH बॉन्ड H, and that is CH3 bond C bond CH3 bond CH3 bond OH. Then all the CH3 group attached with the functional carbon atom, all the CH3 group attached with the functional carbon atom are electron donating group. They are electron donating group. They supply electron to the central carbon so that this carbon will increase the electron density at OH negative, and then OH will get dissociate. The bond between C and O will dissociate and form a carbocation, that is like this carbocation, 3 degree carbocation, 2 degree carbocation and 1 degree carbocation, plus this OH negative, this OH as negative. This is the reaction tendency of an alcohol when it behaves as a positive species, and positive species is what? This is a electrophile. ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो जो रिएक्शन इसके अंदर हो रही है वो क्या हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल को स्टेबल करने के लिए पहले जो न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था उसको सब्स्टिट्यूट किया गया। अल्कोहल तो अपनी जगह पर ही है, अल्कोहल का जो मेन फंक्शनल कार्बन है वो तो अपनी जगह पे ही है, वो कहीं नहीं गया। उसके साथ सब्स्टिट्यूट क्या हुआ? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगर बॉन्ड ब्रेक करता है बिटवीन O एंड H, देन if bond will break between O and H like R bond O bond H, then this is delta negative and this is delta positive। अगर ऐसे करके बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो क्या होगा? If we react an alcohol like CH3OH in presence of metal, then it will form CH3ONA plus H। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, तो यहाँ H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो अल्कोहल किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, कुछ रिकॉल कीजिए 10th क्लास का कंसेप्ट। जब कोई सब्सटेंस मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाए और हाइड्रोजन गैस रिलीज करे, देन दैट सब्सटेंस विल बी एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये क्या हो गया? दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। देन फिनॉल्स, इफ वी डिस्कस फॉर फिनॉल, देन दिस इज फिनॉल। इफ दिस रिएक्ट विथ Na, देन NaOH, then it will form ONA. This is form ONA plus water. Then this is a base, this is a salt, this is water, then this is what? This is must be acid. Acid plus base gives salt plus water. This is what? This is the acidic character of alcohols and phenols.
हम क्या करते हैं, ज़्यादातर एल्कोहल या फिनॉल के ऊपर R के साथ OH लगा हुआ देखकर हम क्या सोचते हैं कि एल्कोहल फिनॉल क्या है, बेसिक कैरेक्टर का है। लेकिन एक्चुअली में जो एल्कोहल्स का कैरेक्टर होता है, जो फिनॉल्स का कैरेक्टर होता है, वो क्या है, एसिडिक कैरेक्टर का होता है। ठीक है, एक्चुअली में इसका जो कैरेक्टर है वो एसिडिक कैरेक्टर का है। अच्छा, इसमें बेसिक नेचर भी है, इसके पास बेसिक नेचर भी है, बिकॉज कैसे है देखिए, एल्कोहल्स के पास अपना बेसिक नेचर भी होता है। कैसे होता है वो देखिए, एल्कोहल्स दोनों तरीके से रिएक्शन शो करते हैं, वो एसिडिक भी हैं और वो बेसिक भी हैं। कैसे हैं, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड H, then this oxygen have lone pair. If it reacts with a CH3 positive, if it reacts with a CH3 positive, then this lone pair will attack on this positive charge. This lone pair will attack on this positive charge and it will form what, CH3 bond O bond CH3. Suppose ऐसी एक रिएक्शन हो जाती है, तो ये रिएक्शन क्या बता रहा है, जो लोन पेयर का डोनर है वो क्या होता है, वो बेस होता है, वो लेविस बेस होता है। जो भी लोन पेयर को डोनेट करेगा वो क्या बनाएगा, वो लेविस का बेस बनाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर क्या है, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बना, वो कॉम्प्लेक्स कैसा बना, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड CH3, पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर बिकॉज इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड वन मोर पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द ऑक्सीजन एटम। यहां पर एक नया पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे हटेगा यहां से, ये पॉजिटिव चार्ज तब हटेगा जब ये हाइड्रोजन यहां से क्या होगा, डिस्प्लेस किया जाएगा। और हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके कहां जाएगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके बनाएगा CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस H पॉजिटिव। देखिए, अगर ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को ऑक्सीजन पर डोनेट कर देता है, देन दिस हाइड्रोजन विल बिकम्स पॉजिटिव एंड द हेड ऑफ द एरो ऑलवेज बी नेगेटिव। देन दिस नेगेटिव, दिस हेड, the negative charge due to this head and the positive charge which is already present on the oxygen will makes the oxygen neutral. तो ये क्या हो गया, this reaction proves that alcohol can also react as a base. Alcohol have both the properties of acid as well as a base. तो alcohol के पास क्या है, दोनों तरीके की प्रॉपर्टी है, वो एसिडिक कैरेक्टर का भी है और वो बेसिक कैरेक्टर का भी है। इस चीज का हम खास ख्याल रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, किसी एल्कोहल का कॉन्जुगेट एसिड या फिर कॉन्जुगेट बेस बना सकते हैं। किसी एल्कोहल का हम कोई कॉन्जुगेट एसिड या फिर कोई कॉन्जुगेट बेस बना सकते हैं। सपोज दैट अगर हमारे पास कोई बेस गिवन है, लाइक RO, दिस इज अ बेस। अगर हमारे पास कोई बेस गिवन है, इसमें अगर हम H+ आयन ऐड कर दें, ये क्या है, ये H+ आयन है, ये एसिडिक इंडिकेटर है, ये एसिडिक कैरेक्टर का है। किसी गिवन बेस में अगर कोई एसिडिक कैरेक्टर हम ऐड कर दें तो ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या बना देगा, ROH, दैट इज व्हाट, दैट इज अ कॉन्जुगेट एसिड। एंड if we can remove an H+ from the given acid, then it will form what, it will form conjugate base like HOH. This is what, this is water. If we will remove one H+ from HOH, then it will form OH negative. Then OH negative hydroxyl ion is the conjugate base of given water. This is what, this is conjugate base.
conjugate base, and this is what? This is acid. This is acid. क्यों? क्योंकि हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर प्रोटोनेटेड वाटर लेते हैं, H2O/H+. ये क्या है? प्रोटोनेटेड वाटर है, ठीक है। यहां पर वाटर क्या है? एसिडिक नेचर का है। वाटर का pH 7 है, लेकिन यहां पर वाटर का जो नेचर है वो क्या है? एसिडिक नेचर का है, स्लाइटली एसिडिक। Then this will form a conjugate base of OH negative, and this base when react with acid, then it will form conjugate acid. If the base react with acid, then it will form conjugate acid. And if a given acid, if the given acid will react with a base, then it will form a conjugate base. अगर हम इस HOH को H bond O bond H को किसी गिवन बेस के साथ रिएक्शन करा दें, देन दिस OH नेगेटिव कैन कंबाइन विद आइदर ऑफ द H पॉजिटिव, देन इट विल फॉर्म वाटर प्लस OH नेगेटिव, एंड दिस OH नेगेटिव इज व्हाट? कॉन्जुगेट बेस ऑफ गिवन वाटर. So since alcohols have both type of character, acidic and basic, so alcohol can form conjugate acid as well as conjugate base. Alcohols can form conjugate acid as well as the conjugate base. Next, the resonance of phenol, is also responsible for the acidic character of phenols. The resonance of phenol is also responsible for the acidic character of phenol, because phenols have extra electron to be, जो क्या करेगा? यहां पर मूव करना स्टार्ट करेगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो कि इस रिंग को क्या करेगा? डीलोकेलाइज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां मूव कर सकता है, एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, O पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव, ये हो गया। ये नेगेटिव यहां मूव कर सकता है, ये डबल बॉन्ड फिर से यहां मूव कर सकता है, एक और नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन गया? यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां डबल बॉन्ड पहले से था, O पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन। देन दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव एंड दिस पाई बॉन्ड कैन ऑल्सो मूव, तो एक नया और स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, पाई बॉन्ड का लोकेशन चेंज हो जाएगा, O पे पॉजिटिव, और ये फिर क्या हुआ? ये बॉन्ड यहाँ चला गया, यहाँ पहले से एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पहले से एक डबल बॉन्ड है, देन दिस डबल बॉन्ड विल अनदर शिफ्ट दिखाएगा ये, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिनॉल फिर से, ठीक है। तो देखिए ये जो कंटिन्यूअस शिफ्टिंग है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो कंटिन्यूअस शिफ्टिंग है फ्री इलेक्ट्रॉन की, ये क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है कि इस फिनॉल रिंग के पास, ये पोजीशन और ये पोजीशन नेगेटिव चार्ज से फिल्ड है, और हम क्या जानते हैं कि अगर इस नेगेटिव चार्ज को हम यहां से हटा दें तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा H और H, ठीक है। और सिंस ये क्या है? ये नेगेटिव चार्ज के लिए ऑक्यूपाइड स्पेस है, तो क्या होगा? यहां से H+ को डोनेट किया जाएगा, एंड सब्सटेंस विच कैन डोनेट 3H+, or you can say substance which can donate H+ from 3 different side is more acidic. तो क्या है? फिनॉल्स क्या है? ज़्यादा एसिडिक है। अगर पूछा जाए कि एल्कोहल्स और फिनॉल्स में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो कौन है? फिनॉल, क्योंकि उसके पास रेजोनेंस है, और ये रेजोनेंस क्या प्रूफ करता है कि फिनॉल जो है वो मोर देन 1 H+ आयन रिलीज कर सकता है एट अ टाइम। क्यों? क्योंकि उसके पास जो रिएक्शन टेंडेंसी है वो क्या है? एल्कोहल से ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि उसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं, अपने हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो एक बार एसिडिक होता है। देखिए यहाँ भी एसिडिक है, यहाँ भी एसिडिक है, और यहाँ भी एसिडिक है। ये 3 इसके एसिडिक कैरेक्टर्स के प्रूफ हैं।
जितनी बार ये नेगेटिव चार्ज रिंग पर डीलोकेलाइज होगा, जितनी बार ये नेगेटिव चार्ज फिनॉल के रिंग पर डीलोकेलाइज होगा, उतनी बार वहां से एक H+ आयन निकलेगा। तो टोटल एक रेजोनेंस साइकिल में फिनॉल जो है वो 3 H+ आयन निकालता है, जिस कारण से क्या है, दिस इज वेरी मच एसिडिक इन नेचर। देखो बेटा, ये जो थ्योरी मैंने आज आपको बताई ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को बुक से पढ़िए, 1-2 बार, वीडियो को 2-3 बार देखिए और कंसेप्ट को समझने के लिए सोचिए। क्या था कंसेप्ट कि एल्कोहल्स और फिनॉल्स जो है वो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए उनके पास एसिडिक नेचर भी है, उनके पास बेसिक नेचर भी है। सिंस उनके पास एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के नेचर हैं, इसलिए वो कॉन्जुगेट एसिड भी बनाते हैं और वो कॉन्जुगेट बेस भी बनाते हैं। मतलब क्या, वो OH- के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और H+ आयन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देंगे, अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर देंगे। ये सब क्या प्रूफ करता है कि फिनॉल्स और एल्कोहल्स जो हैं वो एसिडिक कैरेक्टर के हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बनाना या कॉन्जुगेट बेस बनाना ये प्रूफ करता है कि इनके पास दोनों तरीके का नेचर होता है। देन क्वेश्चन क्या उठा कि विच इज मोर एसिडिक, एल्कोहल और फिनॉल? देन योर आंसर विल बी फिनॉल, बिकॉज फिनॉल हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर and during the process of resonance phenol can supply 3 H+ ions from the different resonating structures, so this is much more acidic as compared to a given alcohol. Okay guys, thank you for the day, और नेक्स्ट डे हम किसी नए रिएक्शंस के साथ मिलेंगे। अल्कोहल फिनॉल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमें बहुत सारे नेम रिएक्शंस पढ़ने हैं, उनका मैकेनिज्म पढ़ना है, और एक बहुत फेमस नेम रिएक्शन राइमर टाइमर रिएक्शन इसी अल्कोहल का पार्ट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो गाइज वीडियो को बार बार देखिए और चीज़ों को समझिए, और कुछ नहीं आए तो मुझे भेजिए। ओके, थैंक्स।